marks. Student? No, why? Very low voice, SIS ka students ka very low voice. I'm not at all happy, right? No, sir. No, I will not take. Atni, Neha, okay? Yes, No sir. test for you. No test for you. You don't want any test, right, in this semester? No, sir, not like that. No, I will take next semester. You don't have to worry. Only just you'll get a small KT in this semester, okay? That you can clear in the next semester. That's all. Okay? Those who don't I want will not. test, no test for them. Okay? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. दैट डे व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, क्या चल रहा था उस दिन, एंड वी सेड दैट लेट ऑल अदर ज्वाइन. स्ट्रक्चर चल रहा था, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, and we had discussed nested structure. Many of them have left out, right, students? Nested structure. What is my nested structure? Structure inside structure, right? Yes, sir. We have executed the example based on nested structure or no? नहीं किया ना? किया था. Yeah. नेस्टेड स्ट्रक्चर के हाँ किया था राइट. वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ बर्थ पे किया था, राइट? Yes, sir. यस, वी हैव डन दैट. ओके, वेरी गुड. तो हमने किया हुआ है. स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग चल रहे हैं अभी. बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वट एवर वी हैव डन टिल नाउ इट्स ऑफ irrelevant if I won't complete that particular topic. Because whether I've done variables, arrays, structures, pointers, but you must have realized that whatever program we run, input and output remains there till you are there in the program. The moment you come out of the program, suppose you entered the marks of some student, 10 students, 100 students, and you must have seen the result. What if after some time, if somebody is asking, can I get my result? Can I see my result? Right? Then, sir, you can't be able to show them anything. Again, you have to re-enter the whole thing, and then only you can see the output. Right? Student. Hello? Whatever output you have executed previously, if somebody wanted to see the same output once again, can you able to show that output once again? Is it possible? For that, again, you have to enter and run the program, enter the input and run the program, right? Yes. But what if it is a, maybe what you can say, in the college, there can be 100 students in your class, and every day I have to mark the attendance for the students in every lecture. So what do you expect that should I write every day, shall I enter 100 students ka name in the software, and then every day the attendance would begin? Or shall I store all these 100 names somewhere and then just I have to mark present absent? What is to be done? Store, right? If it is a mall, thousands of products they are selling. If I'm going to write this kind of program like structure, union, whatever it is, array, pointers, what you can see, they can, can they run the mall? Because every day, whenever they are going to start the computer, they have to enter the product detail first, the quantity available, their rates. अरे 4 दिन तो उसमें ही चला जाएगा. When they are going to start the mall, sir, they have to store it. All inputs and outputs, they have to store it. What was my yesterday's total transaction? What was my day before yesterday transaction? How much sale was there in my last month? How much sale was there my last 1 year? How can I get all that detail? Students, how will you get all that detail, sir? Not possible, right? Because I'm not storing anything. No inputs are stored, no outputs are stored. अभी hospital में है, suppose you have stored some patient detail and you shut down your computer, again you're restarting your computer and you wanted to know, Baba, who is the patient and what are the details
what treatment is going on. Can you get any patient detail and treatment detail? Is it possible? Hello? Can you get any details? Patient detail मिलेगा? नहीं मिलेगा, right? मिलेगा क्या? Are we storing somewhere? Hello? सर Yes, मिलेगा। sir. कहाँ मिलेगा? जैसे मान लो अभी हमने इतने सारे प्रोग्राम स्टोर रन किए और वो सारे प्रोग्राम का मुझे किसी भी एक प्रोग्राम का बता दो, मैं आउटपुट देख सकता हूँ क्या? मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सेव करना पड़ेगा। क्या सेव करना पड़ेगा? आउटपुट ना, इनपुट आउटपुट सब स्टोर करना पड़ता है, सेव करना। मैंने किया किसी का? मैंने किया है किसी का? चलो होटल में चले जाते हैं और हम रूम बुक करते हैं, वहां पर 4 दिन रहते हैं। तो होटल वाला अगर रोज कंप्यूटर बंद चालू कर रहा है, राइट, या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा रहा है, तो उसको मालूम पड़ेगा मैं कौन से दिन मैंने चेक इन किया था? नहीं हाँ मालूम। नहीं मालूम पड़ेगा। नहीं मालूम पड़ेगा ना, कंप्यूटर एक बार बंद कर दिया। अभी जैसे प्रोग्राम जब रन करोगे तो यू विल से एंटर चेक इन डेट, चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम एंड चेकआउट डेट। और उसके बाद में प्रोग्राम थोड़ी देर के बाद फिर से बोले रन, फिर से दूसरे प्रोग्राम रन कर दिया, तो बोले पहले कस्टमर का चेक इन टाइम क्या था? सर वो तो मैंने कहाँ स्टोर किया, राइट? वो तो एंटर करके मैंने दिखा दिया, स्टोर कुछ नहीं है मेरे पास। स्टूडेंट, हेलो? यस सर, उसको सेव इतना करना सारा पड़ेगा। सेव करना पड़ेगा। सेविंग तो कुछ किया ही नहीं मैंने। वो पैसेंजर का डिटेल ऑफ फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, टूर्स में, कहीं पे भी मेरे पास कुछ भी सेविंग नहीं। मतलब अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग सीखा हमारे काम का कुछ नहीं हुआ, राइट? हमें हर चीज को क्या करना पड़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, आई नीड टू सेव ऑल द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। जैसे मान लो बोर्ड के पास में 12th स्टैंडर्ड में 15 लाख 20 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, right? So before they enter the marks in front of the name of the student, they have to enter the student detail, and entering student detail into the system itself is going to take a lot of time, right? So it should not happen that tomorrow, it cannot be done in one day, it takes time. So it should not happen that tomorrow when I'm going to start my system again I have to re-enter the whole name. Every day I'll be keep on doing the same thing. Marks कभी enter करेंगे और मार्क्स चलो आज आधा स्टोर हो गया, बाकी कल करेंगे, तो आधा फिर जाना नहीं चाहिए। इट शुड रिमेन इनटू द सिस्टम, राइट? यस और नो? जैसे एम्प्लॉय है, उसको एंड ऑफ द मंथ में सैलरी देना है, तो उसके जो अभी तक का पूरा 30 डेज या 31 डेज का अटेंडेंस कहीं स्टोर होना चाहिए, देन ओनली वी कैन जनरेट द सैलरी, राइट? स्टूडेंट, यस Yes, sir. हाँ, तो ये सब कैसे होगा? मतलब मुझे जो भी डिटेल है स्टोर होना चाहिए। अभी मान लो तो रिजल्ट, मार्क्स एंटर करने के बाद में हमने स्टोर किया और मैंने आपको रिजल्ट दे दिया। 5 साल के बाद कोई बच्चा आता है, सर आई हैव लॉस्ट माई मार्कशीट्स, नो मेरा चोरी हो गया, ये हुआ, सो आई वांट अ डुप्लीकेट। हाउ विल यू ब्रिंग द डुप्लीकेट मार्कशीट? किधर से मिलेगा? स्टोर किया हुआ डेटा से। स्टोर किया हुआ। हमने तो अभी तक स्टोर करने का कुछ बात ही नहीं किया। वी आर नॉट स्टोरिंग एनीथिंग, राइट स्टूडेंट? Yes. यस तो कैसे करना चाहिए? मतलब हर जगह, एवरी फील्ड यू नेम वेयर यू डोंट रिक्वायर स्टोरेज, एवरीवेयर यू रिक्वायर स्टोरेज, राइट? कॉलेज में चाहिए तो स्टोर चाहिए, होटल में जाएंगे तो स्टोर चाहिए, हॉस्पिटल में जाएंगे तो स्टोर चाहिए, राइट? रिजर्वेशन में जाएंगे स्टोर चाहिए। यू टेल मी कोई भी ऐसा एक भी जगह, बट कोई शॉप में जाएंगे तो उसका भी प्रोडक्ट डिटेल स्टोर करना चाहिए, देन ओनली दैट फेलो कैन सेल आउट द प्रोडक्ट। So everywhere I need to store the data. Data, once I say data, or you can call your any product detail, any student detail, any employee detail, any doctor detail, any patient detail, the detail is in terms of structure. So you should know how to store a structure detail into somewhere. Where are you going to store the structure? Student. Hello. अरे लेकिन कैसे? हार्ड डिस्क में आपको कैसे पता है कहाँ पे कितना जगह खाली है, कितना नहीं खाली, कितना डेटा स्टोर कर सकते हो? और जब रिट्रीव करोगे तो क्या हार्ड डिस्क में कैसे डेटा लेके आओगे? जब मान लो उसी को रीड करना है जो आपने स्टोर किया है, तो रीड कैसे करोगे? हु विल डू दिस जॉब? सो दैट मीन्स I have to create two kinds of, now we are learning something called as files, where we will store. जैसे आप जो भी पढ़ रहे हो, बहुत सारे अच्छे बच्चे नोट्स बनाते जाते हैं, सर ने कल क्या पढ़ाया था मेरे पास, मैंने लिखा हुआ है,
हमने प्रोग्राम भी लिखे हुए हैं, they used to write in the notebook so that they can refer later, right? स्टूडेंट, होता है कि नहीं होता है? अगर स्टोर नहीं करोगे, then what I taught in my 10 lectures, on the 10th lecture, my 12 lecture before, you don't have anything with you, right? स्टूडेंट, Yes, sir. तो क्या करना चाहिए? स्टोर करना चाहिए. We should know how to store. Storage is very important. We cannot move ahead without storage. I hope. So there are two types of one storage. One is input ka store. Second is output ka store. What is my input ka store? So in, like, suppose in your board examination, so many students are giving the exam. So their name, their marks detail, everything is being stored. And their results are stored in output file. कोई आएगा बोले सर मेरा रिजल्ट डुप्लीकेट, तो दैट इज देयर. इट्स लाइक एम्प्लॉय डिटेल्स आर स्टोर्ड इन द एस एन इनपुट. बट उनका कोई आएगा सर मेरा कहने कि मैं लास्ट 3 months का सैलरी स्लिप बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ लोन. हाउ यू गेट दैट? दैट इज द प्रोसेस्ड डेटा स्टोर्ड इन द आउटपुट फाइल. So there are again storage. You are storing the input as well as you are storing the output, right? Student, hello. Yes. We will be storing the inputs and we'll be storing the outputs. And the outputs are generated from this inputs only. Like suppose mall है तो वहां पे product name, product ID, product code, product का rate, quantity, this is all input. अगर कोई पूछता है कि बाबा कल का कितना सेल हुआ था, तो वो क्या है? आप क्या बता रहे हैं? आउटपुट बता रहे हैं, राइट? यस और नो? टुमारो हु वाज, आई मीन yesterday who was present, who was absent, how will you make out? There was input given and from that input you are generating the output, right? तो कल का डिटेल मुझे मालूम पड़ेगा. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अपार्ट फ्रॉम योर स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, एरेज, पॉइंटर्स, right? Variables. You should know the next topic, which is very very important, is called as files. To store any data in a file, there are 3 steps. Like this is notebook mein, when you want to store something, 3 steps. First step, to store the data, you have to open your notebook. That is, open a file. Second step, either you have to read from that file. आइदर मतलब मैं जो डेटा स्टोर किया हूं उसको रिट्रीव कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं, या तो मैं उसमें राइट कर रहा हूं. आई विल बी डूइंग ओनली 2 थिंग्स. आइदर आई विल बी राइटिंग इन अ फाइल, दैट मींस आई विल बी राइटिंग इन अ नोटबुक, और आई विल बी रीडिंग द नोटबुक. नोटबुक आपके सामने, तो आप क्या करोगे? 2 ही ऑपरेशन पॉसिबल है. या तो उससे रीड करोगे या तो उसमें राइट करोगे, राइट? कि और कुछ करेंगे? तो वैसे ही फाइल में भी 2 ही ऑपरेशन पॉसिबल होगा. या तो आपने ऑलरेडी पहले राइट किया है तो आप रीड करोगे, और राइट नहीं किया है तो पहले राइट करो, देन ओनली यू कैन रीड, राइट? फर्स्ट यू शुड राइट, देन यू शुड रीड. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट, Yes. Yes, sir. what is the first operation I should be doing with the file? Open. Before you read or write, first step is to open the file. Can you read from the notebook without opening the notebook? No. No, sir. So before reading or writing, you have to open the notebook. First step. Second step is what? Read or write. And once your reading and writing is over, that means I've done whatever I wanted to know. My homework is over, right? Reading, writing is over. Can you kept that book open as it is lying on your table? Your mother will say thank you. No. मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटी अच्छी है करके she will say thank you. Once so many books are open in your table, what she will tell you? Close it. Close it. Why to close that? Because it is not required. It is not required. So the moment I'll close my notebook or my textbook, here in computers, the memory which you have where you occupying by opening that textbook or notebook, your RAM will be free so that it can be used for some other program. So here I would like to explain you with an example, the table where you sit and study, the table, small table where you sit and study. And in table wall में कुछ wall unit होगा या side में कुछ where you kept all your books. So many books are there, right? But all the books cannot be opened on that table.
बिकॉज जो वार्डरोब है जो तुम्हारे साथ में जो स्टोरेज है उसका साइज बड़ा है और जो टेबल साइज है वो क्या है, छोटा है, राइट? यस और नो? जो टेबल है वो तुम्हारा रैम है और जो तुम्हारा स्टोरेज है वो तुम्हारा हार्ड डिस्क है, राइट स्टूडेंट? हेलो? Yes. जो टेबल है, टेबल में हाउ मेनी बुक्स यू कैन ओपन एट द सेम टाइम? मे बी 3 4, नॉट मोर देन दैट, राइट? डिपेंड्स ऑन द Yes. साइज ऑफ द बुक, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बुक। छोटा वाला बुक ओपन कर रहे हैं, बड़ा, सो 3 4 मैक्सिमम यू कैन ओपन, नॉट मोर देन दैट। सो देन फिर वो रैम पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा। सो इफ आई वांटेड टू ओपन सम फिफ्थ बुक और सिक्स्थ बुक, देन यू हैव टू क्लोज द प्रीवियसली ओपन्ड बुक, राइट? So when I close the previously opened book, so then those books will be swapped to the hard disk, and new book you can add into your RAM. You bring back new book from your hard disk to the RAM, right? स्टूडेंट, तो ये स्वैपिंग होते रहता है दोनों का। जब बुक क्लोज करते हो तो हार्ड डिस्क में चला जाता है और फिर से ओपन करते हो तो फिर से लोड होता है रैम में, राइट स्टूडेंट? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. Yes, तो sir. जब हम फाइल क्लोज करते हैं देन व्हाट, इट गोज बैक टू द हार्ड डिस्क। व्हेन यू ओपन Hard द disk. फाइल इट, वो फिर रैम में वापस आता है। जैसे फाइल क्लोज कर दिया, जैसे आपको क्लोज करना और फिजिकल लाइफ में, रियल लाइफ में, दैट मीन्स यू आर कीपिंग द बुक इन योर कबर्ड, राइट, इन योर स्टोरेज। आपने बुक क्लोज करके टेबल को खाली कर दिया, उधर रख दिया आपने, और बुक ओपन करना है, रीड करना है, तो आपको बुक वहां से लोड करना है, हार्ड डिस्क से रैम में लोड करना है, राइट? यस और नो? Yes, sir. यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है। सो टुडे वी आर लर्निंग अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट which is related to files. Now before I'll start with the files, how to store something, I will not directly teach you like how to store a structure in the file. That we will see at the end कि पूरा एक स्टूडेंट डिटेल हो, पेशेंट डिटेल हो, डॉक्टर डिटेल हो, फ्लाइट डिटेल हो, कैसे हम एक साथ स्टोर करेंगे। और उसमें मान लो कोई स्टूडेंट्स का नाम कैंसिल करना है, हाउ कैन यू डिलीट द एंटायर रिकॉर्ड एट अ टाइम। या कि कोई स्टूडेंट आता है, सर मेरा फोन नंबर जरा, कैन यू चेंज माय फोन नंबर, आई वांट टू चेंज द फोन नंबर और माय एड्रेस इज चेंज, वी कैन डू दैट, ऑल दैट चेंजेस लेटर। So first of all, we'll see just how to add a simple number integer into the your file. एक छोटा नंबर, एक नंबर कैसे ऐड करते हैं, फिर एक दो नंबर कैसे ऐड करेंगे, फिर 10 नंबर कैसे ऐड करेंगे, एक एक हम लोग सीखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? इज माय स्क्रीन इज विजिबल? नो, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। No, sir. So first we will see, I hope you all have understood what is the use of file, right? What is the use of file? Yes. So that the data which is there in To store the data. whatever is the data is there. So why we are storing the data? Anybody? So that we can refer that data in future, right? कोई आता है, सर वो मेरा लास्ट ईयर का ये चाहिए मुझे, क्या बोलते हैं, यू नो, मेरा कुछ भी चाहिए, मार्कशीट चाहिए, किसी को सैलरी स्लिप चाहिए, जो भी चाहिए, यू विल गेट एवरीथिंग, बट इट कैन बी गिवन टू देम ओनली इफ इट इज स्टोर्ड। इफ इट इज नॉट स्टोर्ड, वी कैन नॉट प्रोवाइड एनीथिंग, राइट? जैसे आप बोलोगे सर वो एलसीएम जीसीडी का क्या आंसर था, वो 15 एंड 18 का आपने निकाला था, सर आई डोंट हैव, फिर से रन करना पड़ेगा, फिर से एंटर करना पड़ेगा, राइट? So here it is 1 or 2 number we can think of, we can enter and we can see the output. What about in the mall? Are you going to enter 1000 product detail once again? Are you going to enter so many train ka detail once again? Are you going to enter flight details once again? Student? No, we cannot think of this. So then try to think how to store it. That means henceforth we are writing a program, हम enter नहीं करेंगे, हम फाइल में स्टोर करेंगे, और हमारा प्रोग्राम वो फाइल से नंबर रीड करेगा और वो नंबर को बता देगा इवन है कि ऑड है, ऐसा सब छोटा छोटा प्रोग्राम देखेंगे। फिर वो पूरा का पूरा डेटा फाइल से रीड करेगा एंड विल डू द नीडफुल। दैट मीन्स वी आर ह्यूमन को साइड करते हैं, अब हम डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले, इज माई स्क्रीन इज विजिबल, यस और नो? Yes, sir. It's visible. सबसे पहले फाइल के लिए मुझे एक फाइल पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ये मैंने फाइल इज अ स्ट्रक्चर, फाइल देखो ये जो FILE लिखा है कैपिटल में, ये स्ट्रक्चर है, और ये FP इज अ पॉइंटर विच विल स्टोर द एड्रेस ऑफ अ फाइल विच आई एम गोइंग टू क्रिएट जस्ट नाउ। व्हेन आई से फाइल इज अ स्ट्रक्चर, सो स्ट्रक्चर हैज गॉट डिफरेंट मेंबर्स। व्हाट आर द फाइल का मेंबर क्या होगा सर? फाइल का नाम क्या है,
फाइल का डेट ऑफ क्रिएशन क्या है, फाइल का टाइम ऑफ क्रिएशन क्या है, फाइल का साइज क्या है, वेदर दिस फाइल इज फॉर रीडिंग पर्पज और फॉर राइटिंग पर्पज, दैट इज व्हाट इज द मोड दिस फाइल विच आई एम क्रिएटिंग। इसमें मैं लिखने वाला हूं कि इससे मैं रीड करने वाला हूं। आई कैन नॉट डू बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, राइट? The file which I'm opening, I'll be reading this file or I'll be writing into this file. I need to inform that. So these are the different members, that is file name, file size, file date, file time, file mode. So many things are coming up in this. So this fp will look into the address of the file. So fp is equal to, आप फाइल नेम अपना खुद का देना चाहते हो कि फाइल नेम यूजर से लेना चाहते हो? कौन सी फाइल को आपको ओपन करना है स्टूडेंट्स? चलो मैं एक ऐसे ही मेरा फाइल नेम बना देता हूं। अगर यूजर फाइल नेम नहीं देगा तो मैंने बोला fp। एक मेरा दोस्त है उसका नाम है f open। मैंने बोला f open, यार एक फाइल ओपन करनी। बोलो सर कौन सी फाइल? मैंने बोला यार एक number.dat ओपन कर दो। अगर वो number.dat एग्जिस्ट होएगा तो ओपन हो जाएगा, और नहीं है तो क्रिएट करेगा और फिर ओपन करेगा। स्टूडेंट वो f open पहले चेक करेगा कि number.dat यहाँ पे है क्या, कहाँ पे C कोलन, हम कहाँ पे वर्क कर रहे हैं? यू रिमेंबर दैट वेयर वी आर राइटिंग द प्रोग्राम, वी आर इनटू द C कोलन TC बिन में है। तो बिन के अंदर में अगर number.dat है तो वो ओपन किया जाएगा, नहीं है so it will create one file with the name called number.dat. For what purpose I am opening this file? Sir, I am opening this for what purpose? What is the purpose for opening the file, students? Hello? Verifying or checking that. हाँ, टू राइट। पहले राइट करोगे ना, रिट्रीव किधर से बात करो? लिखा कुछ नहीं और रिट्रीव करना है। नोटबुक में कुछ लिखा है नहीं, नोटबुक ब्लैंक है, बोलते रिट्रीव करना है। स्टूडेंट सिंपल कॉमन सेंस रियल लाइफ रखो अपने सामने कि आपको डेटा कब मिलेगा? जब आप लिखोगे। लिखा ही नहीं, बोले सर हमको रीड करना है, कहाँ क्या मिलेगा रीडिंग में? स्टूडेंट्स नोटबुक में कुछ लिखोगे, देन ओनली यू कैन रिफर योर नोटबुक, राइट? तो पहले राइट करना पड़ेगा। तो अब मैं चेक कर रहा हूं मेरे दोस्त f open ने क्या किया, क्या मेरा फाइल ओपन हो रहा है क्या? तो f open को जब फाइल ओपन करना है, और हो सकता है ये फाइल बहुत बड़ा है और उतना, जैसे मान लो कोई बड़ा बुक घर में आपके पास है और रैम में आपने टेबल में ऑलरेडी 4 बुक ओपन करके रखा है, तो कैन यू ओपन द 5th बुक नाउ? आपका टेबल इज फुल्ली ऑक्युपाइड नाउ, कैन यू ओपन द 5th बुक? तो और तो मैं चेक कर रहा हूं f open क्या कर रहा है, मेरा ये फाइल ओपन कर देगा क्या? f open चेक करेगा। पहला बात, फाइल प्रेजेंट होना चाहिए और साइज प्रेजेंट होना चाहिए। फाइल हार्ड डिस्क में होना चाहिए, साइज रैम में होना चाहिए, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? फाइल हार्ड डिस्क में होना चाहिए और साइज रैम में होना चाहिए जहां पे लोड होगा। तो फाइल तो है लेकिन साइज नहीं है, रैम खाली नहीं है, तो उसको अगर इनफ मेमोरी नहीं मिलेगा तो ये क्या बोलेगा पता है? ये एक जीरो वैल्यू उसको दे देगा एफपी पॉइंटर को। भाई पॉइंटर को मतलब जीरो मतलब सर फॉल्स, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं। इफ एफपी इज नल दैट मींस एफ ओपन कैन नॉट ओपन द फाइल। बट इफ एफपी अगर फाइल ओपन हो रहा है तो उसको एड्रेस देगा, किसको? एफपी को। एफपी को पता चल जाएगा भाई ये एफ ओपन कहाँ पे रहता है, राइट? उसको बताएगा क्या बोलते हैं, SIS कॉलेज साइन वेस्ट नियर जैन सोसाइटी, ऐसा उसको एड्रेस बता देगा। बट यहाँ पे SIS कॉलेज हार्ड डिस्क में किधर है? So it will give some number where is that file is residing, right student? अगर वो फाइल ओपन नहीं कर पा रहा है तो इट विल गिव अ नल वैल्यू, जीरो वैल्यू टू एफपी। एफपी जीरो मतलब सर फाइल ओपन नहीं हुआ, नॉन जीरो मतलब ट्रू मतलब ओपन हुआ है। सो इफ एफपी इज नल तो मैं प्रिंट एफ करूंगा मैसेज कि बाबा कांट ओपन फाइल। क्यों कांट ओपन? सर देख नहीं रहे टेबल तुम्हारा फुल है, राइट? हमको जगह ही नहीं मिल रहा है, आई कैन नॉट ओपन फाइल, राइट? यस और नो? तो कांट ओपन फाइल, कांट ओपन फाइल। तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो मैं फिर जा रहा हूं घूमने, फिर मैं कुछ काम नहीं कर सकता, छुट्टी, एग्जिट, ठीक है? क्योंकि फाइल जब ओपन ही नहीं होगा तो मैं लिखूं किधर? आप समझ रहे हो स्टूडेंट? क्योंकि नया नोटबुक ओपन करने के लिए मुझे आपकी 4-5 नोटबुक आपके टेबल में ओपन है, नया खाली नोटबुक ओपन करने के लिए मुझे जगह तो चाहिए, और ये एफ ओपन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑलरेडी स्पेस इज ऑक्युपाइड। सो प्लीज क्लोज सम ऑफ द फाइल सो दैट आई कैन ओपन द न्यू फाइल एंड आई कैन राइट समथिंग। सो जगह होगी तो ओपन होगा।
तो चलो अब हम लोग मान लो हमारा फाइल ओपन हो गया है, एफपी नल नहीं है, एफपी कुछ है, नंबर है, तो मैं एक नंबर ले लिया, नंबर। अब मैं यूजर को बोल रहा हूं, मान लो ओपन हो गया, एफपी इज नॉट नल, एफपी इज नल नहीं है, नॉट नल है। सो एफपी इज नल तो कांट ओपन, एफपी इज नॉट नल। तो मान लो मैं यूजर को मैंने बोला चल भाई एक नंबर दे दे, एंटर एन इंटीजर। तो इसने एक इंटीजर दे दिया मुझे, यूजर को रीड करेगा मैसेज, अच्छा सर को नंबर चाहिए, ले लो नंबर, स्कैन ऐप, चलो नंबर लेके आओ। कहाँ से लाना है सर, आपको तो पता है इतना दिन थे, 3 महीने से नंबर लेके आ रहे हो, बफर से लेके आना है, नंबर आ गया। अब ये नंबर को कहाँ स्टोर करना है भाई, ये नंबर को मुझे एक फाइल में स्टोर करना है। क्या नाम है फाइल का, number.dat। किसको पता है वो नाम क्या है, एफपी को पता है। ये नंबर जो आया है इसको क्या करना है स्टूडेंट, स्टोर करना है, राइट। हेलो, Yes. कहाँ पे स्टोर करना है, कौन सी फाइल में स्टोर करना है। DAT. SP. हाँ, number.dat फाइल। और वो number.dat फाइल का लोकेशन किधर है वो किसको पता है, पॉइंटर को पता है। कौन से पॉइंटर को पता है, फाइल पॉइंटर, एफपी, एफपी को पता है, एफपी को पता है, राइट। हाँ, तो मैं अब बोलता हूँ, मेरा एक दूसरा दोस्त है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका नाम है एफ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ स्क्रीन में डिस्प्ले करता था और एफ प्रिंट एफ वो फाइल में प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ स्क्रीन में प्रिंट करता था और ये कहाँ जाके प्रिंट करेगा, फाइल में। ठीक है, मैंने उसको बोला यार एक काम करो, कि बोले सर मैं आपका ही काम करता हूँ। मैं बोला यार एक नंबर लिख दो। कहाँ लिखना है सर, एफपी में लिखना है। क्या लिखना है सर, इंटीजर लिखना है। कितना इंटीजर, एक इंटीजर। कहाँ पे है वो इंटीजर, एन को लिखना है। कहाँ लिखना है एन को, एन को कहाँ पे लिखना है, एफपी में लिखना है। व्हाट इज द टाइप ऑफ एन, इंटीजर, राइट स्टूडेंट। देखो एफपी को मैंने क्या क्या बताया भाई साहब, आपको एक नंबर लिखना है। कौन से टाइप का नंबर है सर, इंटीजर है। कहां पे इंटीजर, एन का वैल्यू, किसका वैल्यू है, एन का। कौन सी फाइल में करना है, एफपी में, राइट। तो बोले ठीक है सर कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा नंबर उसने लिख दिया है तो मुझे क्या कर देना चाहिए, अब फाइल को क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, क्लोज कर देना चाहिए। कर दिया मैंने। कितना छोटा प्रोग्राम मैंने सिखाया है कि आपने क्या किया। सबसे पहले देखो, आपका काम इतना था, पहले इतना ही करते थे आप, ये नंबर रीड किया, प्रिंट किया, बस एंटर नंबर, नंबर आया, प्रिंट कर दिया। अब मैंने क्या बोला है कि नंबर आपको फाइल में स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए उसके पहले आपको फाइल ओपन करना चाहिए, राइट, यस और नो। Yes. तो देखो कितना काम बढ़ गया, स्टोरेज करना मतलब काम बढ़ गया। सो सेव एस फाइल 1.c। चलो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा ये रोएगा, प्रोग्राम एरर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि सर और वहाँ पे एरर करे, क्लोज है। ये बोलेगा सर ये फाइल कौन है, ये है फाइल हैश इंक्लूड st। हाँ, उसको बताना पड़ेगा सर फाइल किधर है, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का। अब अभी भी कुछ नाटक है, हाँ सर यहाँ तो कुछ तो नाटक है। इसका क्या है, ये कोट है, सिंगल कोट। कैरेक्टर को कभी भी सिंगल कोट में करते हैं। और ये क्या नाटक है, हाँ ये अभी क्लियर हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको चाहिए तो डबल कोट्स में करो, नॉट अ प्रॉब्लम, जो भी करना है। तो चलो मेरा ये रन हो रहा है प्रोग्राम। ये एरर क्यों आया, एफ क्लोज का क्या प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या कहीं, हाँ सर वहाँ पे क्लोज लगा, रिपोज लिखा। हाँ हाँ. ये हो गया, ठीक है, इज दैट क्लियर। Yes. चलो अब हम लोग कंपाइल करते हैं, अब हम लोग रन करते हैं। ये बोलते हैं नंबर दे दो, चलो मैंने नंबर जो पसंद नंबर मैंने 45 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, 45 किया, राइट। Yes. 45 तो गया, कहाँ गया है 45, कुछ पता है 45 कहाँ पे है, किसके पास है 45। चलो देखते हैं वहां पे है कि नहीं ये, चला चेक करके आते हैं हम लोग, राइट।
तो मैं आ रहा हूँ 45 देखने के लिए। मैं जरा पहले मेरी नंबर फाइल तो देखूं। मैं जरा टाइप नंबर .dat मिला क्या 45? यस सर। कौन सी फाइल में है ये? Yes. नंबर .dat में, राइट? नंबर .dat में 45 number है। dot dat चलो अपनी फाइल भी देख लो आप पहले, मेरी फाइल है कि नहीं। नंबर .dat, देखो नंबर .dat एक फाइल बनी है। कभी बनाई गई ये फाइल? टाइम और डेट दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? यस सर। 29 आज बनी है 11:38 को, राइट? नहीं तो आप बोलोगे सर पहले से बनाया होगा। कभी बनाया हमने इसको? आज बनाया है। 29/11/2021 को 11:38 को फाइल क्रिएट हुआ है। कितना बाइट्स का डेटा है उसमें? 2 बाइट्स का, राइट? फाइल साइज क्या है उसका स्टूडेंट? यस, हाँ 2 बाइट्स। एक इंटीजर 2 बाइट का मेमोरी है। अब मुझे चाहिए कि मुझे वो नंबर रीड करना है, तो मैं प्रोग्राम को चेंज कर रहा हूं। अब मैं ये तो मैंने ऐसे दिखाया, मैं प्रोग्राम के थ्रू नंबर चाहिए मुझे। फाइल 2.c, सेकेंड फाइल का प्रोग्राम। अब मुझे पता है मेरे पास एक फाइल है जिसका नंबर .dat नाम है, और वहां से मैं फाइल को रीड करूंगा। क्या किया मैंने? चेंज किया, राइट स्टूडेंट? देख रहे हो यहां पे क्या yes किया मैंने? यस सर। मैं, हाँ, नंबर रीड करूंगा, और मैं नंबर रीड करने के बाद में फाइल फिर से रीडिंग के लिए फाइल को लोड करना पड़ेगा। मेमोरी होएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो फिर से वो चिल्लाएगा बाबा नॉट इनफ मेमोरी, कांट ओपन फाइल, सो ही विल दैट कंट्रोल विल गो बैक। तो आप मुझे नंबर रीड करना है, नंबर रीड करना है तो मुझे स्कैनएफ कहां से रीड करता है स्टूडेंट्स? हेलो, स्कैनएफ कहां से रीड करता है? बफर से, राइट? और अब मुझे कहां से रीड करना है? फाइल से। कहां से रीड करना है? file कौन सी फाइल से रीड करना है? hp एफपी से। तो मेरा एक दोस्त है, मैंने बोला एफ स्कैनएफ, स्कैनएफ नहीं एफ स्कैनएफ। बोले बोलो सर। मैं बोला एक काम करोगे? बोले यस सर, प्लीज रीड वन इंटीजर। ओके, फ्रॉम विच फाइल सर? एफपी। सो वो एक इंटीजर रीड करेगा, वो नंबर को एन में ला के रखेगा। और अब आप कुछ देखना है वो नंबर के बारे में जो वहां पे है, वो इवन है, ऑड है, कुछ ऐसा देखना है तो वो भी बता देगा। कुछ करना है उसको? हाँ स्टूडेंट्स, चलो मैं बता देता हूँ। वो फाइल में जो नंबर आपने रखा है वो भी कर देख लेते हैं। अगर वो नंबर 2 से, जो नंबर अभी अभी रीड किया है, इफ इट इज डिविजिबल बाई 2, इफ इट इज डिविजिबल बाई 2 से, देन आई विल से printf %d is odd, n is odd, right? No, is even, divisible है तो even, ठीक है? else printf %d is odd। अगर डिविजिबल है तो इवन, नॉट डिविजिबल है तो ऑड। तो आपके पास जो 45 है वहां पे, वो तो नॉन डिविजिबल है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पे? स्टूडेंट्स, ऑड आना चाहिए, राइट? अब देखो, Yes, sir. अब हमारे प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं, फाइल 2 को रन करेंगे। इससे क्या मिसप्लेस्ड एल्स, रन करते हैं। देखो क्या बताया उसने, 45 ऑड, राइट? तो आपने नंबर एंटर किया था क्या 45? अभी इसने नंबर कहां से लिया? फाइल से। फाइल से उसने गया, प्रोग्राम जाता है, पहले फाइल को, प्रोग्राम फाइल को ओपन करता है, फाइल से नंबर को रीड करता है, फिर चेक करता है, फिर आउटपुट बता रहा है, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? सर अब बोलो। सर अगर हमने फाइल में ऐसा 2-3 नंबर सेव किया रहेगा तो कौन सा नंबर रीड करेगा? पहला फर्स्ट से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट से स्टार्ट करेगा, ठीक है? ओके सर।
डोंट वरी, मैं एक एक मार रहा हूँ, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। किचन है तो पहले आज चाय बनाना सिखाएंगे स्टार्टिंग में, राइट? फिर थोड़ा और 2-4 लोग के लिए चाय बनाएंगे, 2 कप टी नहीं, फिर ज्यादा बनाएंगे, राइट? तो अभी तो एक नंबर यस के बारे में सीखो। आपकी एक नंबर को हम कैसे स्टोर किए और कैसे रिट्रीव कर लिए। पहले प्रोग्राम में मैंने स्टोर किया था, सेकेंड प्रोग्राम में मैंने क्या कर दिया, रिट्रीव कर लिया, राइट स्टूडेंट? Hmm. इज दैट क्लियर? Yes. और हाँ, तो अगर अभी ये दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है सर कि मुझे नंबर, थोड़े नंबर ज्यादा है मेरी फाइल में और मुझे पता करना है कि वो कौन सा नंबर पिकअप करेगा, क्या है, तो चलो हम प्रोग्राम हमारे फाइल 1 में जाते हैं, फिर से थोड़ा सा प्ले करते हैं। प्लीज जिसको नहीं समझेगा प्लीज आप पूछ लेना, प्लीज आस्क, नॉट टू कैरी योर डाउट स्टूडेंट्स। अभी तक जो 2 प्रोग्राम लिखा है, एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? सर वो जो आपने बोला कांट ओपन फाइल वाला, मतलब आपने हाँ, जो एग्जांपल दिया साइज का, रैम का, कि कुछ ही बुक्स ओपन कर सकते हैं, जो नहीं रिक्वायर है वो मतलब बंद क्लोज कर देंगे। तो सर हम लोग मोबाइल में तो सारे टैब्स ओपन कर सकते हैं, मतलब रैम नहीं वाला कंसेप्ट मेरे को समझा नहीं। नहीं, जैसे मोबाइल में भी कितनी एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं? सर मोबाइल में भी ऑल आई कितना? थिंक। नहीं, वो ऑल वर्किंग नहीं होते हैं। टैब कितने ओपन कर पाते हैं आप? हाँ, जो टैब Clear है, था। जो आपके जो आई, वो बेटा जो आप बात करो ना काजोल, सब डेस्कटॉप लोडेड है आपके इसमें, राइट? जैसे मान लो कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है सामने, यू कैन हैव मेनी डेस्कटॉप्स, राइट? बट उनको ओपन यस सर। करना इज डिफरेंट। उनको ओपन करना, दे आर नॉट ओपनड, राइट? वो एक एप्लीकेशन का एक स्मॉल आइकन होता है। वो एप्लीकेशन, जैसे आपने डेस्कटॉप में माई कंप्यूटर रख दिया, अब माई कंप्यूटर का जो डिटेल्स है सब हार्ड डिस्क में है, राइट? ओके गेटिंग माई सर। पॉइंट? तो हाँ वैसे यस सर। ये ऐप का क्या है, जस्ट एक आइकन है। अब जैसे मान लो कोई भी ऐप है, वो बिलिंग ऐप है या आपका नेटफ्लिक्स का ऐप है, तो उनका जो पूरा सर्वर कहाँ है, पूरा दूसरी जगह है, राइट? आप जब उसको लोड करते हो, जब उसको ऑपरेट करते हो, तो फिर वो उसमें लोड होता है। आपके मन में यही कह रहे हैं कि सर हमने तो बहुत सारे आइकन रख सकते हैं हमारे मोबाइल पे, राइट? आइकन रखना एक हाँ अलग बात यस। होती है, लेकिन आइकन को ओपन करो, आइकन को टच करो, ओपन होने दो, फिर कितने ओपन कर सकते हो, फिर बताओ आप। और फिर अगर हम ज्यादा ओके ओके। ओपन हो रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ हमारे मोबाइल अच्छे हैं करके हम ज्यादा मेमोरी वाला मोबाइल यूज कर रहे हैं, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? हाँ में आ रहा है यस कि नहीं सर। आ रहा? यस, इसके यस सर। लिए। हाँ, वही आप दूसरे कोई लो मेमोरी की मोबाइल यूज करो, फिर देखो कैसे बोले क्या मोबाइल लाया, कहाँ से लाया, ऐसे चिल्लाते रहते हैं ना लोग, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट? यस सर। यस, बिकॉज द मेमोरी प्रॉब्लम हियर देयर स्टूडेंट्स, राइट? कभी कभी यहाँ पे मेमोरी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो आपका जो नंबर डॉट डीएटी है, आपने बोला कि आपका नंबर डॉट डीएटी डी ड्राइव के टीसी फोल्डर में है। आपने बताया जाओ वहां पे एक फाइल है मेरा, वहां से ओपन करो, और मैं गया वहां ढूंढने, मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा आके? मैं फाइल ओपन करूंगा कि मैं आपको जीरो एड्रेस दूंगा, नल एड्रेस दूंगा, क्या करूंगा मैं स्टूडेंट? हेलो स्टूडेंट, क्या मिलेगा मुझे? बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आपको वो चीज वहां नहीं मिलती है, और आप खाली, मम्मी बोलती है लेके आओ वहां से, आप ऐसे ही चले आते हो। दोबारा फिर, अरे तुमको मैं कितनी बार बोलूं, उधर ही रखा है, फिर भी आपको नहीं मिलता, आप ऐसे ही चले आते हो, राइट? खाली हाथ आते हो, बाद में मम्मी को आना ही पड़ता है और वो चीज यस वहीं सर। मिलती है और 4 बार तुमको सुनने को मिलता है, राइट? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये भी है कि फाइल फाउंड नहीं होएगा तो भी एफ ओपन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा एफपी को, क्योंकि आपको फाइल ही नहीं मिल रही, तो आप उसमें रीड राइट कैसे करोगे स्टूडेंट? जो लोकेशन दिया गया है, आइदर द मेमोरी का प्रॉब्लम रहेगा या फाइल नहीं मिलेगा, देन ऑल्सो द एफ ओपन विल रिटर्न अ नल वैल्यू टू एफपी। सो इफ माई एफपी इज नल ड्यू टू एनी रीजन, सो देन आई कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। मैंने यूजर को बता दिया
क्यों बता दिया कि फाइल ओपन नहीं हो, नहीं तो यूजर सोचेगा प्रोग्राम कुछ कर क्यों नहीं रहा है, मैं उसको मैसेज दे दिया बिफोर लिविंग द दिस वन। मम्मी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाबा उसने कुछ बताया नहीं, मेरा काम नहीं किया, मैंने उसको मैसेज दिया कि कांट ओपन फाइल। अब उसको समझ जाना चाहिए क्यों भाई मैंने मेरा इसको बोला था एक नंबर फाइल में ये लिख दो, तो उसको समझेगा कांट ओपन फाइल मैसेज आया मतलब कि क्यों नहीं लिखा उसने, उसको फाइल नहीं मिला होगा या तो मेमोरी का प्रॉब्लम होगा, इसलिए मेरे सिस्टम ने मुझे मैसेज दे के रखा है कि कैन नॉट ओपन फाइल। राइट? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है स्टूडेंट्स? हेलो? तो मुझे मैसेज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि चुपचाप बैठ जाना चाहिए? देना चाहिए, नहीं तो सोचेगा क्यों भाई मैं नंबर बोल रहा हूँ लिखने के लिए, लिख क्यों नहीं रहा है ये। तो उसको मैसेज जब रीड करेगा तो रियलाइज होगा कि मेमोरी का प्रॉब्लम है, या तो इसको फाइल नंबर या नेम या जो भी है। अब हो सकता है ड्राइव बराबर हो और मैंने फाइल का नाम लिखने में गड़बड़ कर दिया है, नंबर की जगह मैंने ई गायब कर दिया, ये ढूंढ रहा था ये किधर है सर, आपका मिस्टेक, ये किधर फाइल है। राइट? गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? तो ये सब गड़बड़ नहीं हो, फाइल ढूंढना कौन सा है, रजिस्टर ढूंढना कौन सा है, नाम ढूंढना कौन सा है, ढूंढते कौन सा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। यू हैव टू गिव द प्रॉपर नेम एंड ऑल। राइट? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस। सो ये काजोल कुछ डाउट है? नो सर, नो। पूछो जितना पूछना है। पहले हम फाइल कर क्यों रहे हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द व्हाई वी आर डूइंग विद द फाइल्स। राइट? यस। ये फाइल मैंने बोला पॉइंटर को कैसे लिखते हो आप, पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हो? पॉइंटर ए हो तो क्या, हाँ ए पॉइंटर है मतलब सॉरी इंटीजर स्टार ए बोलोगे तो इंटीजर वैल्यू का एड्रेस लेगा, और ये एपी किसका एड्रेस लेने जा रहा है, फाइल का एड्रेस। राइट? तो ये फाइल का नाम क्या है, फाइल का साइज क्या है, डेट क्या है, कहां पे फाइल है, उसका लोकेशन लेगा। राइट? फाइल का एड्रेस। सो आई रिक्वायर फाइल पॉइंटर। राइट? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टार क्यों है वहां पे, मतलब ये पॉइंटर है, पॉइंटर तो मैंने बताया हुआ है, पॉइंटर में क्या आता है, पॉइंटर इज नथिंग बट द एड्रेस। तो यहाँ पे किसका एड्रेस एड्रेस स्टोर करना है आपको, किसका एड्रेस स्टोर करना है आपको, फाइल का एड्रेस। कौन सी फाइल का एड्रेस, फाइल। number.dat, number.dat। राइट? यस। अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क, देन ओनली आई गो फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम, अदरवाइज आप बोलोगे सर समझा नहीं। तो देखो सबसे पहले मेरा नंबर था फाइल में, आई हैव ओपन द फाइल फॉर रीडिंग पर्पज, एंड if I can open the file for reading purpose, then the next line I'm reading here, and after reading the file number, I'm just checking whether it is even or odd, accordingly I'm displaying, and after once my job gets done, I'm closing my file. That's all. Right? That is what I told you. Always you have, so my first step is to open, second step to read or write, third step is to close the file. Right? So these are the three steps, basic steps which you have to perform in all file programs. Now somebody is asking, sir, तो पूछ रहा था कि जरा मल्टीपल नंबर पे बात करो। अब आप फाइल 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 वन किधर गया, ये फाइल वन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मल्टीपल की बात आई है, मल्टीपल नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है? कितना नंबर स्टोर करना है आप बता देना। ठीक है स्टूडेंट? हेलो? आप बोलोगे उतना नंबर हम स्टोर कर देंगे आपकी फाइल में। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है पहले ये देखते हैं। ये अभी नहीं चल रहा है, एक मिनट, चेंजेस लगता है सेव नहीं हुए हैं। हैश, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, जो मैं फाइल आपको ट्रांसफर करूंगा जरा चेक कर लेना, चेंजेस मैंने अपडेट नहीं किए थे यस इसके सर, लिए। ऐसे प्रॉब्लम होता है। हाँ ऐसा कभी कभी हो सकता है, बिकॉज अभी देखो मैंने ये रन करके दिखाया था लेकिन चेंज नहीं किया था, सेव नहीं किया था। ठीक है? ये मैंने रन तो किया था ना, इसी प्रोग्राम से तो मैंने सेव किया था नंबर को। राइट? यस सर। हाँ। और दूसरा बात एक और याद रखो स्टूडेंट्स, जब आप दूसरी बार प्रोग्राम को रन करोगे, अब मैं दूसरी बार रन कर रहा हूं मैं प्रोग्राम को, ये क्या हुआ, एफ क्लोज का प्रॉब्लम है। चलो मैं एफ क्लोज को भी ठीक कर देता हूं। आप नोट करना, मैं यू हैव टू टेल योर आंसर ऑन योर ओन। मैं सेकेंड टाइम ये प्रोग्राम, अब इसको पहले सेव करता हूं, सेव दिस, आई एम रनिंग द प्रोग्राम, एंटर एन इंटीजर, आई सेड 125, मैंने नंबर एंटर कर दिया है। मैंने 125 फिर से रन कर देता हूं, 125। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है।
125 है कि नहीं मेरे पास? 125, सॉरी, टाइप नंबर डॉट dat। क्या मिला आपको स्टूडेंट? तो कोई मुझे कुछ 125। क्वेश्चन नहीं कर रहा है, किसी के माइंड में कुछ डाउट नहीं आ रहा है? सर किसी इसमें के? ऐसा रहता है क्या कि जो रिसेंटली डाला रहता है वो आता है? यस, नंबर ओवरराइट हो गया मेरा। हाँ 45 सर किधर गया? 45। हाँ हाँ, 45 किधर गया? 45 किधर गया? वही तो मैं बोला करके दिखाएंगे, फिर आप क्वेश्चन रेस करो। तो जब हम W मोड यूज करते हैं, W फॉर राइटिंग, जब W मोड यूज करते हैं तो अगर सेकेंड टाइम प्रोग्राम को रन करोगे तो पिछला वाला जितना भी डेटा होगा ओवरराइट हो जाएगा, सब कंटेंट्स इरेज हो जाएगा, फिर से फ्रेश स्टार्ट करेगा। अगर फाइल में दोबारा लिखने चल रहे हो स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। W सेकेंड टाइम प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आपका 45 और जितने भी नंबर होते थे सब चले जाएंगे, जो भी डेटा हो, नंबर हो, टेक्स्ट हो, स्ट्रिंग हो, एनीथिंग, स्ट्रक्चर्स हो। So for that we have to change the mode of the file. What is the mode of the file? I'll tell you. इसको हम लोग मोड बोलते हैं। ये W हो, W मतलब फॉर व्हाट? राइटिंग पर्पस। R फॉर व्हाट? रीडिंग पर्पस। एक और बैठा है A, अपेंड। सर, अपेंड, अपेंड मतलब ऐड एट द एंड, जो भी वहां डेटा है उसके बाद आप कुछ ऐड करो। प्लीज नॉट टू इरेज माई एग्जिस्टिंग डेटा। अपेंड, ऐड एट द एंड। 45 को भी सर्वाइवल करने दो और 125 को भी उधर जाने दो, दोनों को रहने दो स्टूडेंट, राइट? हेलो? Yes, sir. So that can happen only with the help of append. If you want your previous data to remain there in that file, then you have to make use of append, not W. What W does? Write तो करेगा, लेकिन Right. सेकेंड टाइम, हाँ राइट तो करेगा, सेकेंड टाइम राइट करोगे तो प्रीवियस वाला, फर्स्ट टाइम वाला डेटा इरेज हो जाएगा, राइट? आपका लेटेस्ट डेटा ही सेव रहेगा। आपको क्या करना है, दैट यू डिसाइड। आई गेव यू बोथ द ऑप्शंस, WA बोथ, append and write. Is that clear, students? Right Yes. now I am writing, somebody said sir more than one number. Yes, I will go ahead with the more than one number. So I'm using one more. मैं यूजर को ही ऊपर दे दिया, बाबा कितना नंबर एंटर करना है आप कर लो, तो मैं उसको लूप में दे दिया। तो एक बार तो एंटर करेगा ही ये, राइट स्टूडेंट्स? एक बार तो एंटर करेगा, राइट? तो while या डू करो, एंटर एन इंटीजर ले लो और स्कैनएप करो, राइट करो। एक नंबर राइट करने के बाद मैंने आपको पूछा सर वांट टू ऐड अनदर नंबर, आपको और दूसरा नंबर ऐड करना है क्या? दिस इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू राइट नाउ। आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे यस या नो में दोगे, या तो वाई टाइप करो या तो नो टाइप करो, बस इससे ज्यादा कुछ मत करना। और एफ फ्लश क्यों चाहिए वो मैंने बहुत बार बता दिया है। एसटीडी इन जो 45 या 125 आया था उसके बाद के एंटर की को फ्लश करने के लिए। स्कैनएफ, आई एम रीडिंग योर आंसर, %C, राइट, एम्परसैंड आंसर, आई एम रीडिंग योर आंसर, एंड while this answer will remain true, while answer is YY, that is small y, or it could be capital Y, or it could be capital Y, then it will continue loop में फिर से जाएगा and it will ask for enter an integer. So you have to enter the number once again. Enter an integer. 1 second, student. Just give me 1 minute. I'll get back to you. Just wait. Just wait. Let me save this program. Give me 1 minute. Just wait. Yes, students. Is my screen is visible? तो आप जरा देखो कि क्या हो रहा था कि पहले सिर्फ मैं एक नंबर एंटर कर रहा था, अब उसी प्रोसेस को मैंने लूपिंग कर दिया है।
कि लूपिंग में क्या कर दिया, पहले तो आपने एक नंबर लिया, रीड किया, उसको अंदर जाने दिया फाइल में, लेट इट गो इनटू द फाइल। फिर आपने यूजर को पूछा भाई और ऐड करना है, यूजर बोलेगा यस, तो फिर आपने अगर आंसर उसका रीड कर, अगर यस है तो फिर से आप डू करोगे। तो अभी जिस बच्चे ने पूछा था उसका आंसर मैं देख के उसको मैंने बोला कि चलो अब भी हम, और परसेंट डी के बाद में स्लैश एन कर दिया। मतलब क्या हो रहा है कि फाइल में जब एक नंबर जाएगा तो वो फाइल के अंदर में दूसरा नंबर जब जाए उससे पहले तुम्हारा जो कर्जर है, फाइल के अंदर का जो कर्जर है वो सेकेंड लाइन में आ जाएगा, इसलिए मैंने स्लैश एन कर दिया। स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, ये लाइन के ऊपर ध्यान दो, प्रिंट एप पे ध्यान दो। मैंने स्लैश एन क्यों किया, यहाँ पे मैंने नंबर को प्रिंट किया, और जो फाइल के अंदर जो कर्सर है, आपने जैसे नया फाइल है, वर्ड फाइल ओपन किया, एक नंबर टाइप करो 45, और दूसरी लाइन में जाना है तो क्या करना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन व्हेन यू वांट टू मूव ऑन टू द सेकंड लाइन, यू हैव टू प्रेस एंटर की, एंटर। राइट? So yes, that will bring you to the new line. That will bring you to the new line. How this will go to the new line? Student. So by you have to say slash n. That slash n will bring it to the new line. Let us run the program and see whether how many numbers we can add. So enter an integer. I'm entering the integer. 34. Want to add? Yes. 67. Want to add? Yes. 85. Add? Yes. 42. Add? Yes. 21. Yes. 89. Yes. और ऐड करना है 56. Yes. Now I say no. Don't add anything, right? Is it clear, students? Hello. Yes. We have added some number. Whatever you have added, would you like to check? Would you like to check how many you have added and what all things you have added? Right? Yes. Definitely interested in that. So let us come back to this and type in which file you have added all this. File number.dat, right? जरा देखो सब नंबर हैं तुम्हारे यहाँ पे, यस। है कि नहीं है? तो जो बच्चे ने पूछा था उसको मैंने आंसर दिया कि आप एक नंबर कैसे ऐड करते हैं और बहुत सारे नंबर कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस। यस। तो ये अब इसके बाद में लेट अस गो बैक टू, अब मैं मेरे प्रोग्राम 2 में जा रहा हूं फिर से। हेलो सर। मेरे प्रोग्राम, हाँ बोलो सर। सर अ लिटिल क्वेश्चन, वो बोलो बोलो। CHAR के बाद आंसर को Y करके इनिशियलाइज करना जरूरी था, मतलब? हाँ, क्योंकि अगर आंसर को कुछ इनिशियलाइज नहीं करोगे ना तो गार्बेज वैल्यू ले लेगा, राइट? ओके। हेलो, आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आंसर क्या होना चाहिए? Y, बट सर हमने while की लाइन में लिखा है ना, लाइक आंसर इक्वल टू Y Y, तो हाँ ठीक है, आप ये प्रैक्टिस रखो, इसको रखो, नहीं भी करोगे तो शायद ये प्रोग्राम में चल जाएगा। ठीक है, आप आंसर वाई रखो, मैं बताऊंगा कहां पे इसका जरूरत पड़ जाएगा। ये आंसर वाई रखो, ठीक है? आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग कि ऑलरेडी हम वैल्यू रीड कर रहे हैं यहाँ पे आंसर में, एंड वो वाई है तो अपने आप कंटिन्यू कर देगा, राइट? yes, वो आपको वैसे भी चल जाएगा, बट अभी मैं रीरन नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा वैल्यू वहां से ये हो जाएगा, बोलते हैं क्या, ओवर राइट हो जाएगा, राइट? सो लेट अस गो फॉर माय नेक्स्ट प्रोग्राम, दैट इज आई रोट सो मेनी नंबर्स इन द फाइल एंड आई वांट यू टू रीड माय दोज नंबर्स। मैं मेरा नंबर को रीड करने दो मुझे। आप मेरा ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम तो देखा है कि नहीं देखा है? हेलो, फाइल यस। 2 वाला। अब देखा मैंने है। बोला फाइल ओपन हो गया, अब आपको फाइल को रीड करना है। कौन सा फाइल रीड करना है? number.dat। number.dat। चलो मैं फिर से एक नंबर फाइल को फिर से रन करके आता हूं, फिर आता हूं तुम्हारे पास। ये कौन सा ओपन हो गया, इसका क्या जरूरत है? फाइल ओपन, फाइल 1, फिर से मैं रन करता हूं। इंटीजर
तो अब देखो सब चले जाएंगे वहां से, सब गायब हो जाएंगे जो पहले एंटर किए थे। थोड़ा कुछ नंबर हमें एंटर कर देते हैं। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ? नहीं हुआ ना बराबर? फिर से और राइट हो जाएगा। चलो 12, 13, ये क्या हुआ? यस नो में ही गड़बड़ हो रहा है, नहीं चलेगा वो। यस नो में यस करना चाहिए था मुझे, बाहर आ रहा है इसके लिए। अब ठीक से करना पड़ेगा। 12 यस, 13 यस, 14 यस, 15 यस, 16 यस, 17 yes, 18 yes, 19 yes, 20 yes, 21 yes, 22 yes, 23 yes, 24 yes, 25 भी चलो कर ही देते हैं। 25 अब भी नो। सो आई हैव एंटर्ड सो मेनी नंबर्स। अगर आपको देखना है तो एक बार मैं दिखा देता हूं क्या है। टाइप नंबर डॉट टी। ओ लफड़ा हुआ। क्या लफड़ा हुआ पता है स्टूडेंट? ओ स्लैश एंड स्लैश सेव नहीं हुआ रहेगा वहां पे चेंजेस में, ये प्रॉब्लम है। यस देखो स्लैश एन यहाँ पे नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जब फाइल, बोलो बोलो बोलो। वी विल यूज, चलो क्लियर स्क्रीन यूज कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं यूज कर रहा हूं? ऐसा तो कुछ पर्पज नहीं था, नहीं लिखा बस। ठीक है, मैंने सोचा आज ये बहुत थक गया है ये बेचारा तुम्हारे जैसा, राइट? लोग बहुत टायर्ड हो जाते हो ना, वैसे ये भी टायर्ड हो गया, तो मैंने सोचा इसको लीव पे रखते हैं आज, लेकिन आपने बुला ही लिया उसको। ठीक है, तो आई हैव सेव्ड दिस प्रोग्राम, सेव दिस। स्लैश इन इज देयर, यस इट इज देयर। रन करते हैं। आई सेट नाउ, रन किया मैंने। सो आई सेट 21 यस, 22 23 24 25 26 27 28 29 30। That's all. No. So I have saved my numbers, so many numbers in the file. Let us check. I will just recall them. Type number dot.dat. You can see your numbers are there in the file, right? Is that clear, students? Yes. Now, why I have entered so many numbers? Now I know there is one file is there, number.dat, which is having so many numbers. Now I want you to write a program which from in that program you read this file and segregate even number in even file and odd number in odd file. Even number in even file and odd number in odd file. Student, is that clear? Getting my point? Hello. So try to Yes. understand. Let us learn something new. So whatever I'm doing right now, no teachers are going to do this in any of the college. कहीं नहीं करेंगे, हम लोग कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है? क्यों कर रहे हैं सर हम लोग एक्स्ट्रा? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। हमारे बच्चों को अगर जॉब देना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट? तो ये मेरा एक फाइल है। आप सोचो स्टूडेंट्स कि आपके प्रोग्राम को कितना फाइल हैंडल करना पड़ेगा? 3। एक जहां पे नंबर है, दूसरा इवेंट फाइल जिसमें हम इवेंट नंबर स्टोर करेंगे, और तीसरा जिसमें
ऑड नंबर स्टोर करेंगे, राइट। तो अब हमको 3 फाइल पॉइंटर बनाने पड़ेंगे, 3। एक FE मतलब फाइल, इवन फाइल, और एक ऐसे नाम कुछ भी दे दो, FO एक ऑड फाइल, और एक FP मतलब नॉर्मल फाइल, राइट स्टूडेंट। हेलो, यस यस। तो अभी एक जो फाइल है, जो नॉर्मल फाइल है जहां पे नंबर स्टोर हैं, उसको आपने रीडिंग करना है वहां से। वहां से क्या करना है, क्या करना है स्टूडेंट्स, रीडिंग, राइट। और इवन ऑड में क्या करना चाहिए, इवन ऑड में क्या करना चाहिए, इवन में क्या करना चाहिए, राइट, क्या करना चाहिए, राइट करना चाहिए, यस। और ऑड में भी क्या करना चाहिए, ऑड, ऑड में भी राइट करना चाहिए। एक ऑड DAT बनाया, एक इवन DAT बनाया। और देखो, इवन का एड्रेस होगा FE के पास, और ऑड का एड्रेस होगा किसके पास, होगा FO के पास, राइट स्टूडेंट। और जब मैंने इवन ओपन किया था, अगर इवन नल है तो भी मैं बोलूंगा भाई कुछ नहीं होगा, और ऑड नल है। अगर मान लो आपका FP ओपन हो गया, FP मतलब कौन सा, FP मतलब जिसमें सभी नंबर हैं, और इवन ओपन नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला कि फाइल कैन नॉट ओपन, और मैं आपके FP को भी क्लोज कर दूंगा। फिर मेन फाइल ओपन करने का क्या मतलब है, मतलब किसी ने बोला कि एक नोटबुक है, इसमें से ये डेटा ये फाइल में लिख दो, ये डेटा ये फाइल में लिख दो, तो मेन नोटबुक तो ओपन हो गया, लेकिन जिसमें लिखना है वो सब ओपन नहीं हो रहे हैं, तो बोले आज छुट्टी, फिर घर पे जाओ, राइट। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। तो मैंने FP को भी क्लोज कर दिया। और हाँ बोलो, ये प्लस किधर तुम बात कर रहे हो अभी, हेलो। नहीं नहीं, तुम कंफ्यूज हो अभी। और मान लो स्टूडेंट्स हमारा FP ओपन हुआ है, नॉर्मल फाइल ओपन हुआ है, और इवन वाला ओपन हुआ है, लेकिन ऑड वाला ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करोगे कि स्टॉप करोगे। मतलब आउट ऑफ 3 फाइल्स यू कुड ओपन 2 फाइल्स, you cannot open the third file, not enough memory. What is to be done now? Are you going to continue with the program, or you'll open the previous open 2 files? उनको क्लोज करोगे, आप क्या करोगे, तो क्लोज करो। यानी कि अगर हमारा इवन ओपन है, नॉर्मल ओपन है, और ऑड ओपन नहीं हो रहा है, तो आई विल क्लोज माई, क्लोज मेरा सादा वाला फाइल जिसमें सभी नंबर हैं, और दूसरा वाला फाइल दैट इज FE। ठीक है, ऑड ओपन नहीं हो रहा है तो इनको भी क्लोज कर देंगे हम, राइट स्टूडेंट। पहले देखो अच्छे से, जब भी पहले आपने नॉर्मल वाला ओपन किया, नॉर्मल ओपन हुआ, इवन वाला ओपन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल वाले को क्लोज कर दो। नॉर्मल ओपन है, इवन ओपन है, लेकिन ऑड ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, नॉर्मल को भी क्लोज करेंगे और इवन वाले को भी क्लोज करेंगे, राइट। हमने इवन वाले को भी क्लोज। नाउ अज्यूम करो कि अब सब ओपन है, तीनों फाइल ओपन है, राइट। तीनों फाइल ओपन है, कहां से रीड करोगे आप, कहां से रीड करना है आपको, FP से। नंबर कहां है सब, FP में। कहां से रीड करना है, FP से। कब तक रीड करना है, डू यू नो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, नो आई डू नॉट नो। सो अब मुझे लूप में जाना पड़ेगा, वाइल, वाइल, वाइल नॉट FEOF, जब तक फाइल का एंड नहीं होगा, नॉट एंड ऑफ फाइल, ऑफ विच फाइल, FP का जब तक एंड नहीं होगा, तब तक क्या करना है स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड, हेलो। नंबर रीड कर रहा हूं, देखो वाइल में ले लिया मैं एक वाइल, जब फाइल ओपन होगी FP, वहां से पहला नंबर रीड किया, इज दैट इज द एंड, नो। तो पहला नंबर रीड करने के बाद में चेक करो, इज दैट नंबर इज इवन। इवन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 2 है तो इवन है, तो उसको आप मेरा कौन से फाइल में प्रिंट करना है, printf FE में करो, FE राइट, FE में करो, और /n कर देते हैं, सो दैट द नेक्स्ट UN विल गो इन द नेक्स्ट प्लेस। उसको आप यहां पे लिख दो, अगर इवन है तो FE में लिख दो, ठीक है। और एल्स
ऑड है तो उसको आप कहाँ लिखोगे? FO में लिखो सर। कहाँ लिखोगे आप? FO में लिखोगे। /n, n, वो नंबर को आप FO में लिखो। बस इतना ही चाहिए मुझे। मतलब आप वाइल लूप में मैंने आपको डाल दिया है कि जब तक वो फाइल में नंबर है तब तक आप वहां से रीड करते रहो, ठीक है? और एंड में मुझे सबको क्लोज करना है। ऑल द फाइल्स हैव टू क्लोज, वेदर इट इज FE और FO और FP। F क्लोज FO, तीनों मैंने क्लोज किए। वंस माई जॉब डन, नंबर्स आर सेग्रीगेटेड, आई हैव टू क्लोज द फाइल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई एम नॉट रीडिंग वन नंबर फ्रॉम द फाइल, आई एम रीडिंग मैनी नंबर्स फ्रॉम द फाइल टिल द एंड ऑफ फाइल, राइट? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो? F मतलब फाइल, EOF मतलब एंड ऑफ फाइल। जब तक मेरा FP यानी नंबर डॉट DAT का एंड नहीं होगा, not end of normal file FP, till that I'll keep on reading my FP, each number one by one, and I'll keep on checking. If they are divisible by 2, that means they are even number, they should go into the even file, otherwise they are supposed to go to into odd file, right? Is it clear students? Hello? हेलो सर। हाँ बोलो सर। सर एक बार आप वापस बताओगे पूरा? एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, बाहर आ गया। पहले रन करते हैं फिर बात करते हैं। पहले रन कर रहे हैं, ठीक है? तो आर यू गोइंग टू एंटर एनी नंबर? नो सर, नंबर्स ऑलरेडी वो फाइल से ले लेगा, इनपुट फाइल से, राइट? और उसमें से 2 फाइल बनाएगा अभी ये। अब मैं रन कर रहा हूं, मेरा 2 फाइल बन गया। सर किधर है, दिखाओ तो सही, राइट? स्टूडेंट, हम लोग देखने चलते हैं भाई इवेंट में क्या है। इवेंट टाइप इवेंट डॉट DAT, क्या मिला इवेंट में, जरा चेक करो स्टूडेंट। इवन यस इवेंट Even इवेंट और टाइप ऑड डॉट DAT, जरा चेक करो क्या मिला। all. ऑड नंबर्स। क्या हुआ फिर, सेग्रीगेट किया इसने? हाँ, यस और यही नंबर है जो तुमने फाइल में दिए थे कि दूसरे नंबर लाके रख दिया उसने, है ना वहां फाइल पे, वाले ने। राइट? हाँ, चाहिए तो आप अपने नंबर डॉट DAT को भी देख लो, नहीं तो बोलोगे सर ये क्या है, ये तो कोई जादू थोड़ी नहीं है। तो आई विल टेल यू कि आप नंबर देखो कि फाइल में क्या थे, ये फाइल में है, राइट? Yes. और इसमें कि अगर आपको ऑड देखने हैं तो ऑड वाले देख लो, इसमें से ही उसने सेग्रीगेट किया है, राइट? समझ रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? क्या किया हमने यहाँ पे, पूरा अच्छे से समझना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ये छोटी चीज नंबर का नहीं समझेगा तो अभी तो बहुत बड़ी जर्नी पड़ी हुई है। Why 3 pointers? तो Because one for, बोलो सर। सर इवन नंबर में 30 2 बार टाइप हुआ था। हाँ, वो उसका टेंशन ऐसे मत लो तो आप, ठीक है? हाँ, वो हो जाएगा, ओके उसका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके। हाँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेदर यू अंडरस्टूड द प्रोग्राम और नॉट। हमें यहाँ पे कितनी फाइल ओपन यस करनी चाहिए? सबसे पहले देखो, ये फाइल ओपन करना चाहिए जो मैंने हाईलाइट किया, ये फॉर रीडिंग के लिए है। अगर ये ओपन हो गया है तो फिर मुझे दूसरा वाला ओपन करना चाहिए राइटिंग के लिए, राइट? अगर मान लो ये ओपन हुआ है, ये नहीं ओपन हो रहा है, या फिर नहीं ओपन हो रहा है, इवन नहीं ओपन हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा इसको भी क्लोज कर देना चाहिए, राइट? Yes. समझ रहा है कि नहीं? उसके अंदर मैंने F क्लोज FP क्यों लिखा? सर इवन वाला ओपन नहीं हो रहा तो मैं उसको भी ओपन करके क्या करूं? मेरा पहला फाइल भी मैंने क्यों ओपन किया, उसको भी क्लोज कर दो, राइट? अगर मेरा इवन नहीं ओपन हो रहा है तो, राइट? यस, ऐसे में जब ऑड के लिए ट्राई कर रहा हूं ओपन के लिए, अगर ऑड वाला ओपन नहीं हो रहा है तो फिर मेरा नॉर्मल वाला इवन वाला दोनों को क्लोज कर दो, राइट? अगर तीनों ओपन हो गए हैं तो आप सबसे पहले कहां से रीडिंग स्टार्ट करोगे? FE से कि FP से कि FO से? रीडिंग कहां से स्टार्ट होगा? रीडिंग कहां से स्टार्ट होगा स्टूडेंट? हेलो? Yes, sir.
तो अगर मान लो, देखो अभी तुम अगर यहाँ पे fscanf लिखा है, अगर इसकी जगह मैंने printf लिख दिया, मान लो ऐसा समझो, तो सर आपका एफपी जो मोड है, एफपी का जो मोड है क्या है, रीडिंग है कि राइटिंग है? राइटिंग। एफपी का जो मोड है एफपी ऊपर रीडिंग है। आपका रीडिंग है, तो कैन यू राइट printf फॉर दैट? एफपी में printf हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपने मोड क्या डिक्लेयर किया हुआ है? आपने सिस्टम को रीडिंग। क्या बताया कि सर मैं एफपी से रीड करूंगा, राइट कभी नहीं करूंगा, राइट? तो यू कैन नॉट राइट दिस, मतलब गलती से वो ध्यान देना पड़ेगा कि आपका मोड क्या है, तो हमें रीड ही करना है। और वैसे ही एफई का जो मोड आपने क्या रखा है, एफई का मोड क्या रखा है राइटिंग। आपने? तो कैन यू एवर राइट fscanf लिख सकते हैं उसके लिए कभी? नो। नो, रीडिंग पॉसिबल ही नहीं है सर। आपने बोला कि आप यू आर कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हो, आप बोलते हो राइटिंग और रीडिंग कैसे कर रहे हो फिर आप, राइट स्टूडेंट? ये कंपाइलर आपको चिल्लाएगा अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा करोगे, तो एरर हो जाएगा सब। आप जो बोलो वही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपने रीडिंग किससे करना है? एफपी से रीडिंग करना है। राइटिंग किस में करना है? राइटिंग सर इवन होंगे तो इवन में राइट कर देंगे, और ऑड होंगे तो ऑड में राइट कर देंगे। इतना सिंपल है, और क्या चाहिए? ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। में आया कि नहीं आया? So I will wind up here, and I will meet during the practical. Maybe first I think Kavita madam is taking the practical, उनके बाद मैं लूंगा, तो मैं फाइल के ऊपर चलूंगा फिर, ठीक है? Is that clear students? बोलो। सब प्रैक्टिकल में मुझे बोलो, बिकॉज राइट नाउ आई एम एट माई प्लेस, आई हैव टू गो टू द कॉलेज। कॉलेज पहुंचने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जिसको ये प्रोग्राम में भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। आई एम रेडी टू, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। You should understand each and everything I am telling you students. Programming requires continuous practice. ऐसा नहीं कि एक हफ्ते पहले पढ़ा तो और अभी मुझे याद होगा। You have to practice it regularly like mathematics. Okay? Okay students, so please take care. We are doing very important topics, so please be present during your practical, not to run away. Otherwise you will be the loser, I won't be the loser over there. ठीक है? आप absent होगे तो आप lose करोगे। काजोल समझा कुछ? थैंक यू। काजोल, यस सर। यस सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि नहीं था? यस सर। सब समझ गया क्या किया मैंने? नंबर कैसे स्टोर करना, कैसे रिट्रीव करना, राइट? इनपुट आउटपुट। यस सर, समझा। इफत, यस सर। ये बाबा सिक्का तुमको समझा बेटा? यस सर, यस सर। चलो अच्छी बात है। और ये हर्षल किधर गया एक सिक्का? सर एक्चुअली उसको थोड़ा वॉमिटिंग हो रहा था, ब्लड वॉमिटिंग, तो वो तो आराम कर रहा था। और वो तुम्हारा दूसरा फ्रेंड विष्णु, जो बर्ड्स का आवाज निकालता है, एनिमल्स का? सर उसका नहीं मान। क्या हो गया उसको, क्या हो गया? नहीं, उसको बोलो सर बुला रहे हैं बाबा, देखो किधर जंगल वंगल में होएगा, आवाज निकाल रहा होगा, उसको बुला के लेके आओ बेटा, ठीक है? एक और देखो इनएक्टिव है इधर, होल्ड में, ऑन होल्ड। ये कौन गायब है? रिफत तुम्हारे बाजू में मेरी स्क्रीन में। हाँ देखो, ये भी घूम रहा है किधर। रिफत, कैन यू सी दैट? यस सर। हाँ ये सब घूम रहे हैं, देखो लॉग इन करके घूम रहे हैं। ओके स्टूडेंट, चलो टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।